Good morning, everyone. This is the sum we will be doing today. Our first sum, last lecture, we had an introduction to final accounts of manufacturing concern. I have explained you about final accounts, about manufacturing account, format of manufacturing account and format of trading account. Today we will start with our first sum. So the sum is in front of your screen. Amar Chemicals has the following ledger balances as on 31st March 2014. Now, see, ledger is given, ledger balances, that is trial balance is given. So trial balance may we have two sides, debit side and credit side. Now you will have to just see where this will come. Goodwill will come where? Goodwill is a reputation of the business, it is a asset, so balance sheet में आएगा. Factory shed means your factory premise, so this is also asset, asset में आएगा. Machinery asset है. Give me the answers everyone. Furniture क्या है? Furniture क्या है? इस asset. Investment क्या है? Investment means investment is also asset, and just see there, एक लाइन नीचे चला गया वो. Investment is a asset. Investment मतलब क्या? To invest in, to put your money in some securities where from which you will get returns in the future is investment. So investment is a asset because future में इससे income मिलेगा. And then capital is a liability. Capital is a liability. Bank loan, you're taking loan from a bank, you have to repay it in the future, is a liability. Capital, owner is putting money in the business and he will get this money whenever he wants to close the business. So capital or leave the business, he will get the money. तो ये भी पैसा business को future में वापस करना है. Whatever money which has to be returned back, repaid back is liability. Creditors का पैसा भी वापस करना है बाद में. Creditor का पैसा बाद में वापस करना है. So creditor is also a liability. Debtor मतलब हमारे customers whom we have sold goods but on credit basis, मतलब उधार में goods बेचा है, future में ये लोग ये पैसा वापस करेंगे. So debtors is a asset. Stock on 1/4/2013, ये कौन सा stock है? Tell me, stock on 1/4/2013. The balance sheet is on 31st March 2014. Means ये सारे opening stocks है. Material का opening stock will come in the manufacturing account. WIP का opening stock, that is work in progress, work in process. WIP also is shown in the manufacturing account, correct? Last lecture में मैंने explain किया था. WIP and material का opening stock is shown in the manufacturing account. Finished goods का everything will be shown in the trading account. So material and WIP will come in the manufacturing account. Finished goods will come in the trading account. Sales will come in the trading account. Miscellaneous income है तो profit and loss account. Bad debts reserve, ये भी profit and loss account में आएगा. Purchase of material कहाँ use होगा? Office में या factory में? Material will be used in the factory. So factory का जो भी कुछ है, that will come in the manufacturing account. So purchase of material will come in the manufacturing account. Freight on material, freight means transportation expense. Carriage inward भी बोलते हैं इसको. So this will also come in the manufacturing account. Factory power, factory से related है तो manufacturing account. Salaries and wages को के नीचे दिया हुआ है
फैक्ट्री में विल कम 1,50,000 एंड ऑफिस में विल कम 65,000. फैक्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑफिस मीन्स P&L account, profit and loss account. Repairs and renewal, repairs and renewal, normally we will take, nothing is given, we take in the profit and loss account. Rent and taxes, profit and loss account. Insurance, profit and loss account. General expense, profit and loss account. But if some information is given, we will have to accordingly write, show it. The following additional information is available. Closing stock is given. Material मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा 2,10,000. WIP will come in the manufacturing account credit side. Finished goods will come in the trading account, correct? और किधर आएगा, बिकॉज इट्स एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट. और किधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक और किधर शो करेंगे? Will it be shown some other place also? Give the answer. Closing stock और किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स का आएगा. Yes, credit side. Material will come in the manufacturing account. Yes, correct answer. Another effect will come in the balance sheet asset side. Closing stock will also be shown in the balance sheet asset side because it's unused, unsold material, unsold goods, finished goods. तो ये asset में भी दिखेगा. Depreciation, we have to mark ना. Depreciation किसमें है? फैक्ट्री शेड में, मशीनरी में और फर्नीचर में. सो वी विल हैव टू मार्क देम कि इसमें एडजस्टमेंट है. तो मैंने क्या किया, लेट मी बोल्ड इट एंड मार्क की ध्यान में रहे कि इस सब में एडजस्टमेंट है. लेट अस इस तीन में जिसमें भी एडजस्टमेंट है, let us mark it so that we don't forget that it has the adjustment. फिर repairs and rent and taxes. repairs, rent and taxes को फैक्ट्री में भी आना चाहिए, ऑफिस में भी आना चाहिए. फैक्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑफिस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन से रेशो में? 3:2 में. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 3:2? 3:2 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3:2 मीन्स 3 + 2. 3 + 2 is 5, means 3/5, 2/5. सो कैसे डिवाइड करना है? फैक्ट्री एंड ऑफिस में 2,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5. तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का मिल जाएगा. और 2,500 इंटू 2/5 करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मिल जाएगा. सेम वे रेंट एंड टैक्सेस को भी करना है. 16,500 इंटू 3/5, 16,500 इंटू 2/5. ये 3/5, 2/5 कैसे मिला? 3 + 2 is 5. So 3/5, 2/5. When we convert the ratio into fraction, we add both the numbers. जो रेशो में जो भी नंबर होगा उनको ऐड करेंगे और उनको डिनोमिनेटर में बताएंगे. तो वो हो जाएगा 3/5, 2/5. 5 कहाँ से आया? 3 + 2 is 5. So 3/5, 2/5. We got it as fraction. मतलब रेशो को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया सो दैट वी कैन डिवाइड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस, बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद अवर नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हमें निकालना है. 4% ऑन डेटर्स. सो एक चीज हम ना ये दोनों को भी मार्क करते हैं सो दैट वी डोंट फॉरगेट दैट इसमें भी एडजस्टमेंट है. 2 जगह पे लिखना है डिवाइड करके. एंड डेटर में भी देयर इज एडजस्टमेंट. सो डेटर को मार्क करेंगे, डेटर को मार्क करेंगे. और एक और चीज वी विल मार्क, दैट इज बैड डेट्स रिजर्व. बैड डेट्स रिजर्व को भी मार्क करेंगे.
बिकॉज इसमें भी देखना पड़ेगा ना, ओल्ड रिजर्व ऑल्सो इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड न्यू रिजर्व इज गिवन इन द एडजस्टमेंट. So we have to compare. Insurance premium covers a period of 1 month in advance. So insurance में there is 1 month in advance. So 1 month advance में है तो हमें क्या करना पड़ेगा. तो 13 months का 1 month एडवांस में है. सो हाउ वी विल डू. तो जस्ट वी विल सी हाउ मच इज द इंश्योरेंस. 18,000. how much is the insurance ka amount. 3,900 na. Insurance is 3,900. So we will see that how much it is for 31 month in advance. मतलब 12 के जगह पे 13 महीने का दिया है. Instead of 12 months they have given for 13 months, 1 month in advance. So we will find out how much it is. 300 है या कितना है. Let us see how it is. We will do it later on. Then let us see whether what else is given. Nothing, इतना ही adjustment है तो इसको भी mark कर लो. This also we will mark because it has a adjustment. I'll highlight this. Okay. So now let us go ahead and solve the sum. पोस्टिंग करेंगे पहले. गुडविल कहाँ आएगा. गुडविल में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है. सो फर्स्ट वी विल जस्ट प्रिपेयर ऑल दिस अकाउंट्स. कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. उसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स. वी हैव टू डू इट फास्ट. इनर कॉलम आउटर कॉलम पर्टिकुलर्स. इनर कॉलम आउटर कॉलम. सेम वे ये ट्रेडिंग अकाउंट भी है and we will continue profit and loss account also in this one. So what is it. Particulars rupees particulars rupees. ये चाहिए और एक चाहिए मुझे बिकॉज दोनों अकाउंट करना है ना एक साथ. एंड हियर liabilities rupees asset rupees. नाउ गुडविल तो असेट है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं. सो गुडविल का अमाउंट कितना है. लेट अस सी. गुडविल इज 50,000. सो विल राइट इन द बैलेंस शीट असेट में आउटर कॉलम में 50,000. आफ्टर गुडविल व्हाट इज देयर. फैक्ट्री शेड पर एडजस्टमेंट इज देयर 20,000. सो सेम जगह पे गुडविल के नीचे वी विल राइट फैक्ट्री शेड और यहाँ लिखेंगे 20,000. एक लाइन छोड़ना पड़ेगा बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर. इसके बाद वी हैव मशीनरी 1,30,000. सो आई विल राइट दिस ऑल्सो हैज अ एडजस्टमेंट. मशीनरी एक लाइन छोड़ देंगे 1,30,000. मशीनरी के बाद व्हाट इज देयर. मशीनरी के बाद 1,30,000 के बाद फर्नीचर 8,000. सो वी विल गो टू द सेम. एक लाइन छोड़ देंगे बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर. फर्नीचर वी विल राइट ऑल आर असेट्स ना. 1 minute. $8,000. Now after this
Let us go above. Investment 10,000, capital 1,95,000. So investment is 10,000. इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो एक लाइन छोड़ के, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो असेट, इन्वेस्टमेंट directly we have to write in the last column. Correct? Directly we will write in the last column 10,000. इसके बाद कैपिटल है. कैपिटल तो we'll have to write in the inner column because net profit या net loss will come. कैपिटल का क्या अमाउंट है? 1,95,000. कैपिटल के बाद बैंक लोन इज देयर 3 लाख. बैंक लोन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 3 लाख 1,50,000 बोथ आर लाइबिलिटीज. सो यहाँ पे थोड़ा लाइन छोड़ के बैंक लोन का अमाउंट कितना है? बैंक लोन हमने अभी देखा, इट इज 3 लाख. एंड क्रेडिटर ऑल्सो देयर इज नो एडजस्टमेंट. सो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? लेकिन हमने अभी देखा 1,50,000. सो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ व्हाट वी विल डू? क्रेडिटर्स के बाद डेटर्स है, पर डेटर में एडजस्टमेंट है 1,35,000. सो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के बाद वी विल राइट डेटर्स. डेटर्स में एडजस्टमेंट है, डेटर में एडजस्टमेंट है 1,35,000 इनर कॉलम. वन एडजस्टमेंट इज देयर. एंड नाउ वी कम टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1,37,500, WIP 82,500, फिनिश गुड्स. सो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वी विल गो and we will write 2 raw material consumed. 2 raw material consumed. ओपनिंग स्टॉक लिखना है ना. 2 raw material. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आता है? सब फैक्ट्री से रिलेटेड. एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर, ऐसे लिखते हैं ना, फॉर year ended 31st March 2014. इसमें शुरू सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट होता है विद रॉ मटेरियल, बिकॉज फैक्ट्री में हमें कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल चाहिए. एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन इन द क्वेश्चन इज 1,30,000. हमने अभी देखा 1,30,000. फिर हमें WIP का मटेरियल दिया है, तो ये मैं लास्ट में लिख लेती हूँ. 2 WIP ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक कितना 7,500 मिला मुझे. ये मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगी 7,500. इसके बाद देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 82,500 क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है. बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, how much? This is what? Finished goods. कितना? 82,500. Now यहाँ तक हो गया 82,500 तक. Now sales, कुछ भी रिटर्न्स नहीं, ऑलरेडी नेट सेल्स दे दिया 11 लाख. सो हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स किधर आता है? ट्रेड, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में 11 लाख. यस, अरे सॉरी,
आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। ये चाहिए मुझे, लेकिन ये बाद में लिखने के लिए चाहिए, मैंने रॉन्ग लिखा। ओ, थैंक यू फॉर ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं और मैंने क्लोजिंग स्टॉक में जाके लिख लिया ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। थैंक फिनिश गुड्स कितना 82,500। थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पे भी नहीं आएगा, डायरेक्टली इट विल कम इन द आउटर कॉलम 82,500 फिनिश गुड्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट। तो अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक तो एडजस्टमेंट में दिया, वहां तक तो हम पहुंचे भी नहीं है। सेल्स के बाद अब मिसलेनियस इनकम 4,000, मिसलेनियस इनकम पीएनएल अकाउंट में आएगा। सो पीएनएल अकाउंट मतलब एक लाइन प्रॉफिट के लिए छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगी इनकम है ना, बाय मिसलेनियस इनकम, इनकम आउटर कॉलम में 4,000 बिकॉज नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट होगा तो ही इनर कॉलम में लिखना है। फिर बैड डेट्स रिजर्व, ये हम लोग है ना जब डेटर का वर्किंग नोट करेंगे ना तभी वी विल डू दिस। इसके बाद परचेस ऑफ मटेरियल 8,60,000, फ्रेट ऑफ मटेरियल 50,000 से दोनों को एक साथ करना है मुझे। इसमें ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और एक चीज ऐड करना है फ्रेट। कोई भी एक्स परचेस एक्सपेंस होता है तो वो भी ऐड करना पड़ता है रॉ मटेरियल। तो क्या है इसका अमाउंट 8,60,000 एंड इसका अमाउंट कितना है 50,000। जब भी हम कुछ, देखो ये ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए पूरा साल तो सफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग मटेरियल का जो भी कुछ खरीदेंगे, साल जो भी मटेरियल खरीदेंगे दैट विल बी एडेड टू द ओपनिंग स्टॉक। एंड इफ देयर इज अ फ्रेट ऑन मटेरियल परचेस, हमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है व्हाइल परचेसिंग ऑफ मटेरियल, दैट आल्सो हैज टू बी एडेड विद द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद क्या है फैक्ट्री पावर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो फैक्ट्री पावर 15,000, फैक्ट्री का कुछ भी रहेगा तो इट विल कम वेयर, फैक्ट्री का कुछ भी रहेगा तो इट विल कम इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो टू फैक्ट्री पावर 15,000, सो आई विल राइट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो 1 minute, 15,000. So 1 minute. Okay. So now after factory power, what is there? Factory power के बाद there are salaries and wages. Factory office, factory का factory means manufacturing account 1,50,000, office means P&L account 65,000. तो salaries and wages लिखना है तो यहाँ लिखेंगे to factory salaries and wages 1,50,000, 1,50,000 and ऑफिस में भी है 65,000। सो बाई ऑफिस salaries and wages 65,000, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, ये भी हो गया। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल दोनों में आएगा 2,500, पॉइंट नंबर 3:2 में डिवाइड करना है। तो टेक योर कैलसी, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल दोनों जगह आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं टू रिपेयर्स
to repairs one minute to repairs and renewals. Others also 3:2 में डिवाइड करना है. To repairs and renewals. One minute. Repairs and renewals. कौन सा रेशो है? 3:2. मतलब 3 फैक्ट्री का और 2 ऑफिस का. तो 3:2. शैल आई शो इन वर्किंग या आप डायरेक्टली 3/5 2/5 कर सकते हो. तो 2500 into 3 divide by 5. How much is it coming? 1500. And 2 divide by 5 कितना आ रहा है? 1000 ना. तो दे से ऑफ जो रिन्यूअल है वो दोनों जगह आएगा. रिन्यूअल जो है वो दोनों जगह आएगा. बाय रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स. ऑफिस में कितना है? 2 divide by 5. Question, if you read properly, they have told कि repairs को और rent and repairs को और rent and taxes को you have to divide between factory and office in the ratio of 3:2. Means factory is 3 share and office is 2 share. They say, what do they say? That factory is 3 share and office is 2 शेयर. तो टोटल अगर 5 शेयर है तो 3 हिस्सा रिपेयर रेंट एंड टैक्सेस का फैक्ट्री में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, एंड 2 शेयर जो है वो ऑफिस में जाएगा. तो अकॉर्डिंगली हमने रिपेयर्स एंड रिन्यूअल को डिवाइड किया. हमें कितना मिला? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल हमें मिला, यहाँ पे मिला 1000. सेम वे वी विल हैव टू डू फॉर रेंट ऑल्सो. रेंट एंड टैक्सेस के लिए भी वही करना है. रेंट एंड टैक्सेस के लिए भी सेम करना है. तो टू रेंट एंड टैक्सेस 3 डिवाइड बाई 5. रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट देखो कितना है? 16,500 into 3 divide by 5 you get 9,900. तो इधर लिखेंगे 9,900 and what you get in the office 2/5 क्या मिल रहा है? by rent and taxes 2 divide by 5 कितना मिल रहा है? 6,600. सो ये भी हो गया. दोनों जगह हमने डिवाइड किया. अभी इंश्योरेंस है. इंश्योरेंस में देयर इज अ एडजस्टमेंट. वो एडजस्टमेंट में आते वक्त देखते हैं. अब इंश्योरेंस ऑफिस में लिख देंगे बिकॉज नथिंग इज गिवन. बाई सॉरी बाई होता है या 2 होता है? इधर तुम लोग ने कुछ बोला ही नहीं. डेबिट साइड में क्या होता है?
to, what was I writing, to insurance 3900. नहीं, इसमें एडजस्टमेंट है तो किधर आना चाहिए? This should come in the debit side, sorry, inner column. This should come in the inner debit side, inner column, 3900. इसके बाद जनरल एक्सपेंस 18,100, ये भी इधर आएगा, टू जनरल एक्सपेंस, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो 18,900, 18,900 करेक्ट, 18,100. हाँ, yeah, yes, I will leave one line because there is an adjustment. 18,100. So all the posting is done. Now what we will do? Now we will solve the adjustment one by one. सबसे पहले we will have to post the closing stock. Material 2,10,000, WIP 12,500 and finished goods 2,07,500. So closing stock 2,10,000. यहाँ पे less closing stock ब्रैकेट में रॉ मटेरियल 2,10,000. सो ब्रैकेट में 2,10,000. क्या आंसर मिलता है सबको ऐड करके ये माइनस करो. हाउ मच आंसर यू आर गेटिंग? 1,30,000, 8,60,000, 50,000 माइनस 2,10,000. आउटर कॉलम में आएगा 8,30,000. करेक्ट, 8,30,000. एंड अभी हम लोग जाएंगे एक और जगह पे, इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कौन सा? बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. सो इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में WIP कितना है? 12,500. इसके बाद वी विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट और वहाँ पे लिखेंगे 2,07,500. डन. नाउ वन मोर प्लेस इसका सेकेंड इफेक्ट देना है. डेटर के नीचे एक लाइन छोड़ना पड़ेगा बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल इज देयर, WIP इज देयर एंड फिनिश्ड गुड्स इज देयर. अमाउंट क्या है? 2,10,000, 12,500, 2,07,500. तीनों का टोटल कितना है? 4,30,000. So our first adjustment is done. Now we will go to our second adjustment. फैक्ट्री शेड में 2.5% डेप्रीसिएशन, मशीनरी पे 10% एंड फर्नीचर पे 15%. So 2.5, 10 and 15. So we will go to the asset side. Less depreciation so यहाँ पे less
depreciation 2.5%. How much is it coming? 500. 2.5. This is not working. Two 2.5% I will write here. How much is it coming? 2.5%. It is coming 500. So ये माइनस करके कितना हो जाएगा? 19,500. Same way, machinery पे it is 10%. So less depreciation at 10%. कितना आ जाएगा? 13,000. सो दिस आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? माइनस करने के बाद 1,30,000 minus 13,000 will be 1,17,000, correct? इसके बाद वी हैव फर्नीचर. फर्नीचर पे 8,000 है, पर 15% डेप्रिसिएशन लेस करना है. लेस depreciation this 15%. कितना आ रहा है 15%? 1,200. तो माइनस करके कितना आ रहा है? दिस कमिंग 6,800. सारा डेप्रिसिएशन लिख लिया. नाउ आवर कंसर्न इज कि ये तीनों में से फैक्ट्री शेड जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं? फैक्ट्री शेड कहाँ यूज होते हैं? फैक्ट्री शेड यूज होता है हाँ, फैक्ट्री शेड और मशीनरी. फैक्ट्री शेड मतलब रिलेटेड टू फैक्ट्री, मशीनरी मतलब रिलेटेड टू फैक्ट्री. तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आएगा पीएनएल अकाउंट में. तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 1,200 और बाकी 500 और 13,000 विल कम इन द फैक्ट्री. लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन किसका? मशीनरी का और फैक्ट्री शेड का. मशीनरी का डेप्रिसिएशन इज 13,000. This is 500. So outer column में we will write 13,500. Done. Second adjustment also done. Now what we will do? P&L अकाउंट में लिख लिया फर्नीचर का और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लिया फैक्ट्री मशीनरी और फैक्ट्री शेड. नाउ रिपेयर्स ये तो कर लिया हमने. नाउ रिजर्व फॉर bad and doubtful debts at 4% on debtors. डेटर्स पे 4% का RDD निकालना है. सो डेटर्स में जाएंगे एंड लिखेंगे लेस RDD. कितना परसेंट? 4%. निकालो 4% of 1,35,000. How much are you getting? 5,04,000. Sorry, 5,400. तो 5,400 माइनस करने पे यस वो दैट ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो हैविंग ट्रायल बैड डेट्स बट दैट इज लास्ट ईयर्स RDD. लास्ट ईयर्स RDD हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी
उतना पैसा साइड में रखा था, पर इस साल हमें कितना पैसा लगता है नहीं मिलेगा डेटर से. वी फील दैट दिस ईयर 5,400 हमें वापस नहीं मिलेगा. दैट दिस ईयर का प्रोविजन इज 5,400. नाउ लास्ट ईयर हमने कितना पैसा साइड में रखा था? लास्ट ईयर हमने 5,000 साइड में रखा था, लेकिन इस साल हमें कितना आरडीडी आ रहा है? इस साल हमें आरडीडी आ रहा है 5,400. तो कैसे सॉल्व करना है इसको? हम लोग यहाँ पे here we will write टू bad debts. Bad debts दिया है क्वेश्चन में, देखो bad debts is given in the question. Is bad debts given in the question? Bad debts नहीं दिया है, बट आरडीडी दिया है न्यू वाला. आरडीडी न्यू वाला कितना है? इज बैड डेट्स गिवन इन द क्वेश्चन? अगर बैड डेट्स दिया रहता तो वो भी लिखना पड़ता सबसे पहले. वो बैड डेट्स तो नहीं है, किधर भी बैड डेट्स है नहीं है. बैड डेट्स रिजर्व है, जो कि लास्ट ईयर हमने साइड में रखा हुआ पैसा है. सो बैड डेट्स न्यू, जो आरडीडी न्यू है, इनर कॉलम में वी विल राइट इट इज 5,400 एंड लेस करेंगे इसमें से आरडीडी जो ओल्ड वाला है, रिजर्व वाला, दैट इज 5,000. दैट इज हाउ मच? 5,000. सो हमारा करंट ईयर का लॉस सिर्फ कितना है? 400. बिकॉज हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर, इस साल हमें लग रहा है कि 5,400 का हमें, हाँ यस राइट. That see what Ashna is given in the chat box. That is same. अगर old bad debts रहेगा तो पहले लिखेंगे, उसमें add करेंगे new bad debts और add करेंगे new RDD और minus करेंगे old RDD. Very good Ashna. See, अगर क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स दिया रहता है तो हम लिखते हैं. ये क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स नहीं है तो हमने न्यू बैड डेट जो है वो लिखा. न्यू बैड डेट्स भी अमाउंट में दिया रहता है, वो भी नहीं है क्वेश्चन में, बट परसेंटेज वाला न्यू आरडीडी इज देयर जो हमने लिखा, जिसमें से हमने ओल्ड आरडीडी माइनस किया. मतलब लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी 5,000 रुपीज साइड में रखा है, पर करंट ईयर का लॉस है 5,400. सो एडिशनल लॉस कितना है? सिर्फ 400 का, क्योंकि हमने इस साल हमारा टोटल लॉस है 5,400 का, बट हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर 5,000 रुपीज साइड में रखा था. तो एक्चुअली लॉस, एक्चुअल लॉस इज ओनली 400. एनी कंफ्यूजन हियर? See, Ashna is very clearly, she is very good, Ashna. So इसके बाद ये भी हो गया. This one is also done. Now last adjustment is there. Last adjustment is there. 1 minute. Let us go to that adjustment. It is about insurance. Insurance में 1 month is in advance. So insurance premium covers a period of 1 month in advance. Normally क्या होता है? Normally हम लोग ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोला है कि हमने 13 months का पे किया है, हम ऐसा नहीं बोला है. क्वेश्चन नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आज पे करती हूँ प्रीमियम तो मैं आज से 12 मंथ्स के लिए पे करूंगी, तो दैट गोज टू नवंबर का, नेक्स्ट ईयर नवंबर तक हो जाएगा पे. तो सेम वे ये लोग ने जब पे किया होगा तो 12 महीने का ही पे किया होगा, बट एज पर अवर ईयर एंड हमें क्या हो रहा है, 1 मंथ का प्रीपेड हो रहा है. प्रीपेड मतलब 1 मंथ का एक्स्ट्रा एडवांस. कितना हमने, वी हैव पेड 1 मंथ इन एडवांस. सो हम जो एडवांस में हमने पे किया है वो हम माइनस करेंगे. तो वो कैसे करना है? 3,900 ये 12 मंथ्स का है, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 1, क्योंकि 1 मंथ इज ओनली एडवांस ना. सो डिवाइड बाय 12 करो, तुम लोग को आंसर मिलेगा कि कितना एडवांस है. इट इज कमिंग, इज इट कमिंग?
into 1. See, 3,900 divide by 12 into 1 month. बिकॉज कितना महीने का प्रीपेड है? सिर्फ 1 मंथ का प्रीपेड है. इस 3,900 कवर्स फुल ईयर का इंश्योरेंस, बट बिकॉज वी डू नॉट पे एज पर अवर ईयर एंड, हमारा कंपनी का ईयर एंड मार्च है, बट हमने मार्च टू अप्रैल ऐसे, अप्रैल टू मार्च ऐसे इंश्योरेंस नहीं पे किया. हमने जब भी पे किया तो अभी अगर हम ईयर एंड में देखेंगे तो एक मंथ अभी भी एडवांस है, तो हमने 30 अप्रैल तक का पे करके रखा है. तो 1 मंथ एडवांस इज कमिंग हाउ मच? 325. सो माइनस करो, कितना आंसर आएगा? 3575. वी आर गेटिंग 3575. So now what is remaining? See, without wasting time, what is remaining? इसका दूसरा इफेक्ट देना है. इसका दूसरा इफेक्ट किधर देंगे? अब क्योंकि हमने एक महीना ऑलरेडी पे करके रखा है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा. प्रीपेड इंश्योरेंस. So this will be 325. Now फटाफट वी विल हैव टू डू द बैलेंसिंग. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बंद करो. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमेशा तुम देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेबिट साइड हैवी रहेगा. सो डेबिट साइड का टोटल निकालो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का. 8,30,000, 1,50,000, 1,500, 9,900, 13,500, 15,000, 7,500. सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाउ मच इज इट कमिंग? Is it coming? 10,27,400. Wait, I will show, I will give you so that you all can also take the total. 8,30,000, 1,50,000, 1,500, 9,900. ओके, सेम अमाउंट. तो हमेशा डेबिट साइड हैवी रहेगा. सो डेबिट साइड में माइनस करना पड़ेगा कितना? 12,500. तो 12,500 माइनस करेंगे, आई एम सॉरी, 12,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट. जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट. बाय ट्रेडिंग अकाउंट. How much are you getting? 10,14,900. 10 lakh 10,14,900. सो दिस, इसको हम और एक चीज बोल सकते हैं. ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में इधर डेबिट साइड में आएगा. बाय का ऑपोजिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. हाउ मच इज इट? I'm sorry.
manufacturing account, same amount, 10,14,900। तो इसके बाद देखो प्रॉफिट है क्या लॉस है, 13 लाख, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हाउ मच इज इट कमिंग, 13 लाख, 7,000। कौन सा साइड हैवी है, 13,07,500, 7,500। हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ मच इज ग्रॉस प्रॉफिट, gross profit is, how much gross profit are you getting, how much gross profit, 2,10,100। and इसके बाद we will go one line ahead and we will write by gross profit, which is coming to 2,10,100। तो इसके बाद नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो, 2,14,400, सॉरी 100, 2,14,100। How much net profit are you getting? To net profit, is 1,18,225। इसको नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे 1,18,225। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, व्हेन वी ऐड 3,13,225 एंड जस्ट कैलकुलेट वेदर अवर बैलेंस शीट इज टैलिंग। बैलेंस शीट का टैली अमाउंट कितना आना चाहिए, 7,63,225। balance sheet 7,63,225. With this the sum is done.